Namaste and welcome to this exciting episode of Pathology Debunking Mythology. Today, my favorite defense person is here. He's the one who won the Kargil war, bombed the hell out of Pakistan, और फिर उन्होंने जो जो किया, it's just I think future में कोई book भी लिखा जाएंगे, लेकिन शायद वही लिखेंगे. So without delay, let's welcome Dr. M.J. Agustin Vinod. Welcome to the show, sir. तो आपके साथ तो मिलके दर्शकों को भी मालूम है मुझे बहुत मजा आता है. We have heart to heart talks. एक्चुअली बहुत न्यूज आ रही है. थैंक यू. एंड दर्शकों को भी आप इसके क्लिप्स भी बना सकते हैं. वीडियोस आर ओपन. तो एक न्यूज आती रहती है डिफेंस के ऊपर. एक तो चिकन नेक पे आया मोहम्मद यूनुस का स्टेटमेंट, और सरप्राइजिंगली चाइना बोलता है कि भाई शांति रखो. Why was that? Like, it was very surprising that Chinese talking about peace over there. देखिए, I have always regarded Xi Jinping as a little more a pragmatic leader than all the current top leaders, barring, of course, Modi ji. So, if I put somebody at number 2 position in terms of sanity of thought, not in terms of their standing in the world order, I would put probably Xi Jinping in close second. Why I will tell you, many channels have been talking for past 3 years that he is going to attack Vietnam, he is going to, invade and stuff like that. It has not happened. Even the skirmish that happened between us and China, it didn't escalate. Though so many people died, एक जना मरा था. There was one prince or somebody who died on that bridge in Sarajevo, and it started off a World War One. So I think he's a little more sane person amongst the leaders that are who were there. So him talking peace was not surprising to me. And secondly, and most importantly, we have a lot of trade with China, and India have a lot of trade. And in fact, we are trade deficit with them. China always stands to gain. The amount of trade deficit that China has, India and China have, where China is on the positive side, is almost 4 times or 5 times that of the GDP of Bangladesh. Why will anyone, कोई भी businessman, अपने पैर में क्यों कुल्हाड़ी मारे? True. And China needs business today because it is just tapering out. Their progress is a plateau for last 1.5 years. It is just that they are able to adjust their currency on the fly, which is why they are able to probably stay afloat in the international market. Their currency is not tied to any other currency. Therefore, they are able to, adjust it the way they want. आज वो बोलेगा कि मेरा जो करेंसी है वो आज से $1 के बजाय $3 है, तो $3 है. मतलब वो फरमान है. But within the, of course, economical boundaries that is there always. So ये सब मद्देनजर वो यूनुस के साथ खड़ा होगा, ये मुश्किल है. और दूसरी बात, Trump is just waiting to remove this fellow. So the guy who is already on the verge of going out, why will you lose on a betting horse? Bet on losing horse. So ये जो थ्रेट था वो टू इंडिया और जो उसने सजेस्ट किया था, what was that? क्या what was that? देखिए, दर्शकों को ये बड़ा जरूरी है समझना कि Yunus only speaks what he has been asked to speak.
उसको जो बोला जाता है वो करता है। और किसने बोला वो इम्पोर्टेंट है, कौन बोला वो किसके मुंह से निकला, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। So Yunus is just a mouthpiece of, the larger forces which are operating from elsewhere. Could even be Soros. तो उनके पास And इतना बुद्धि नहीं है कि हाउ दे yeah, otherwise anyone who's just trying to find cheat in his political career, who has taken over a country from a tumultuous time, ठीक है, सोचिए इस बात को। अपना देश को उसने ऐसे सिचुएशंस पे टेक ओवर किया, उनकी आर्थिक परिस्थिति इस कगार पर खड़ी है कि वो चावल के लिए मोहताज है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के साथ उनके चारों तरफ बॉर्डर है। हमने तो एक छोटा सा पोर्शन म्यांमार के उनके उस तरफ छोड़ दिया जाए तो अधिकांश उनका इलाका जो है भारत के साथ है, जुड़ा हुआ है। और 71 से पहले 47 से पहले वो भारत के हिस्सा भी थे। तो इस तरह की बातें करना, कौन जिसका दिमाग ठिकाने में हो वो कौन ऐसी बातें करेगा, बताइए। Who will talk like this? नहीं, तो ये जो आप मैप दिखा रहे हैं, हाँ, ये जो गौरव वारिया जी ने जिसका जिक्र किया था कि टॉप पोर्शन काट देंगे, इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपने जो मैप दिखाया है ना, वो है 2D मैप। आप 3 डायमेंशनली उसको देखना जरूरी है। करेक्ट। 3 डायमेंशनली देखते हैं तो आपको दिखेगा, मैं दिखा देता हूँ। मैं दिखाता हूँ इधर से, यस, आई विल, ओके, लेट मी, हाँ, यस, डू यू सी दिस? स्क्रीन पे आया मैप, गूगल अर्थ। स्क्रीन पे आ रहा है, वो दिख रहा है अभी स्क्रीन पे। गूगल अर्थ मैप, हाँ, इसमें देखिए आप 3 डायमेंशनली। हाँ, थोड़ा जूम इन कीजिए, यस, बांग्लादेश को जूम इन कीजिए। हाँ, नहीं, 2D में ही करिए। ओके, घूमने लग गया वो, नॉर्थ अप। यस, हाँ, जूम इन कीजिए। यस, अभी आप देखिए 2 नदियां घुस रही हैं। हाँ, इतना बड़ा नदी ब्रह्मपुत्र हाँ, और यहाँ से गंगा जी, हुँ, समझ रहे हैं। और ब्रह्मपुत्र के आप ईस्ट के तरफ देखिए, पूरा पहाड़ी इलाका है, दैट इज ये जो खासी गारो और जयंतिया हिल्स। करेक्ट, उसके बाद ये जो सदर्न पोर्शन है हुँ, वो है हाँ, खासी गारो और जयंतिया हिल्स, है ना। हुँ, और और चिटगांव के राइट में देखिए पूरा पहाड़ी इलाका है। करेक्ट, प्लेन्स इलाका आप जाएंगे ऊपर की तरफ, त्रिपुरा के ऊपर की तरफ, हाँ, उदयपुर के आसपास जाकर के थोड़ा सा प्लेन्स इलाका है। हाँ, और नहीं तो पूरा का पूरा पहाड़ी इलाका जो डार्क ग्रीन है वो पूरा पहाड़ी इलाका है। करेक्ट, ओके, तो ये जो नेक को काटने की बात हो रही है वो ब्रह्मपुत्र तक जाके थम जाएगा। ब्रह्मपुत्र में यू कांट क्रॉस दैट दैट रिवर। करेक्ट, तो अब अगर आप जिस तरह से आप मैप दिखा रहे हैं वैसे काटना मुश्किल है, करेक्ट, ठीक है, क्योंकि हमारा एक बंदा है अ, नहीं है, मेरे पास इमेज नहीं है। मैंने इनफैक्ट इस पे एक पूरा एक वीडियो किया हुआ है, अभी अपलोड अच्छा, नहीं किया, करूंगा क्योंकि और भी कोशिश कर रहा हूँ इसको और मोटा बनाऊं। हाँ, तो ये जो काटने की जो बात हो रही है ये इम्पॉसिबल है, टेरेन डजंट अलाउ यू। अगर
इजी कटिंग अगर कहीं हो सकता है, अब जूम आउट कीजिएगा, हाँ, जूम आउट कीजिए, यस, इन नहीं आउट, और नीचे के चिटगांव की तरफ लिया है, ये चिटगांव जो यस, दिख रहा है ना, यस, और हाँ, ये जो इलाका है यहाँ पे कटिंग पॉसिबल है, क्योंकि हम बैठे हैं पहाड़ पे। मैं गया हूँ यहाँ त्रिपुरा यस, के जो निचला हिस्सा है, और जूम इन कीजिए, यहाँ यस, त्रिपुरा लिखा है, उसका निचला हिस्सा जूम इन कीजिए, हाँ, जहां से चिटगांव दिखता है। हाँ, यस, ये जो इलाका है, ये जो फिंगर जैसा दिख रहा है आपको, हाँ, और जूम इन कीजिए, नहीं यस, ऊपर ऊपर आपका माउस और ऊपर ले आइए, यस, bring the mouse up, little more up, little more to the left, not just a little, your mouse, okay, not the here, map, your mouse, no, okay, left, okay, ये जो ये राइट राइट, हाँ, थोड़ा लेफ्ट, थोड़ा लेफ्ट, yes, this ये finger, जो फिंगर, कैन यू सी दिस फिंगर? yes, या, सो दिस इज द फिंगर which just comes down to the sea, and it is a pincer or a three-prong attack. This is where we can cut off the entire Chittagong. hmm, This is where we get access to the sea. hmm, Understand? And there's a yes, natural port there. फेनी भी है, and then उरीचर, Uh, so this port is a very quite a good port. हाँ, Okay, and these are all Bengali Hindu populations on the right. hmm, The local Hindu population is also with us there. hmm, तो इसकी जो ये जो बातें हैं ना, बेतुकी हैं मिस्टर यूनुस की, एंड जो बोल रहे हैं ऊपर का एरिया काट देंगे, वो भी 3 दिन में काट देंगे, एंड ऑल, इट इज नॉट प्रैक्टिकल, टेरेन डजंट अलाउ यू, नॉट दैट कि आप करोगे कि नहीं करोगे इज नॉट द क्वेश्चन। हाँ, बहुत बड़ा ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र आप जाके देखिए, उस वहां पे आपको दूसरा छोर नहीं दिखेगा, इतना चौड़ा है। आई कैन सी द, अगर इस मैप पे ऐसे दिखाई दे रहा है तो रियलिटी में तो इट विल बी टोटली डिफरेंट। एंड ब्रह्मपुत्र ऑलवेज फ्लो वेरी स्ट्रांग, ओके, क्योंकि उसके ऊपर कोई डैम वैम नहीं हमने अभी बनाया नहीं। जिस तरह से पानी आ रहा है, सारा पहाड़ों का पानी, सारा चीन से जो पानी आता है, ब्रह्मपुत्र घूम करके अंदर घुसता है आपके अरुणाचल के एक जगह पे। ब्रह्मपुत्र को फॉलो कीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ आप समझ जाएंगे। एक्चुअली वो जूम आउट कीजिए, आउट लिटिल मोर आउट, हाँ ये देखिए, हाँ इतना नहीं, हाँ बस जस्ट लाइक, फॉलो ब्रह्मपुत्र, यस, हाँ नहीं फॉलो नॉर्थवर्ड्स, यस, जहाँ भारत में घुसता है, अप अप अप, आई नो, एंड लेफ्ट, यस, लेफ्ट को देखिए एक रिवर, यस, नहीं ब्रह्मपुत्र, फॉलो द ब्रह्मपुत्र, आप कीप गोइंग एंड नाउ गो नॉर्थ, यस, डोंट मूव योर माउस सो फास्ट, नाउ गो नॉर्थ, नाउ गो वेस्ट, ओके, west, dead west, यस, you see the come down, this is that Brahmaputra river, राइट, Songpo. सांगपो, हाँ, यहाँ पे ऊपर ये आए। हाँ, तो ब्रह्मपुत्र ऐसे घूम करके आता है, दर्शकों को समझाना जरूरी है। देखिए इसकी जहां एंट्री होती है इंडिया में, वहां भी मैं गया हूँ, राइट अप टू द पॉइंट वेयर इट एंटर्स इंडिया। ये देखिए, ये लेफ्ट, निमची, देयर इज अ रनवे देयर, भारत का इन द रनवे, वैली, नहीं, चाइना का है वो, निमची। यस, फिर पता है दिबांग, निमची क्यों फेमस है? निमची में ताले बनते हैं। एनीवे, आप फॉलो कीजिए ये पूरा, दिस इज सोंगपो, यस, शिगाट से इट गोज टू शिगाट से टू तिब्बत, यस, ये है ब्रह्मपुत्र, कहीं भी आपको डैम नहीं नजर आएगा। माइटी, एकदम माइटी रिवर है ये। तो ब्रह्मपुत्र घुस रहा है वहां, हाँ, इधर से आ रहा है इतना नीचे, पानी, और ये सारे पहाड़ के जो पानी है ना, ये जो छोटे छोटे रिवर्स दिख रहे हैं, हाँ, हेलम करके एक रिवर है, बहुत सारे रिवर्स हैं, ये सारे रिवर्स में जानता हूँ, सारे रिवर्स में पैदल चला हूँ।
I have served here in Dibrugarh, Tinsukia. एंड सो वाइड, अगर मैप में ऐसी दिख रही है देन इन रियलिटी तो आप अभी कितने किलोमीटर? उधर आइए जहां इंडिया, जहां वो बांग्लादेश में कुछ घुसता है, वहां आइए कितना चढ़ा है, देखिए। बांग्लादेश में इधर घुसा है, इधर। देखिए, यस। आप इधर खड़े होंगे ना, उस पार नहीं दिखा नजर आता है, इतना चौड़ा है। करेक्ट, करेक्ट। इतना आसान नहीं है इसको काटना। करेक्ट। ये तो रिवर है। हाँ। बारिश के मौसम में ये रिवर के जो ओवरफ्लो है, हम्म। ये दोनों तरफ बोगरा तक आ जाता है। कभी कभी बोगरा पानी में चला जाता है। आप गूगल कीजिएगा, कई बार बोगरा बाढ़ के चपेट में आ गया, ऐसे न्यूज आते हैं। ये रहा बोगरा। हाँ, अब यहाँ बाएं तरफ से गंगा जी आ रही हैं। हाँ। ये पूरा जो इलाका है, पूरा बाढ़ पीड़ित इलाका है। इन्होंने हमारी कितनी इंपॉर्टेंट नदी चुरा ली इन लोगों ने, एक पाकिस्तान बना के। लाइक आई फील कि ये तो संगम होता है, भारत में होता है, तीर्थ होता है ये तो, ब्रह्मपुत्र वहां भी और तीर्थ इसका। ही है, वहां भी तीर्थ है ये। वो मुस्लिम जरूर बने, लेकिन वो अभी भी एक तरह से रिवर करते हैं उसको। बंगाली में एक गाना है जो, आमी बांग्लाয় গান গাই, আমি বাংলার গান গাই, আমি আমার আমিকে চিরদিন এই বাংলায় খুঁজे पाई। इसमें आप इसके मुखड़े में आप जब देखते हैं तो ये गंगा और पोद्दार के संगम के बारे में बात करते हैं। और लिखा किसने है? एक इस्लामिक पोएट ने। वाह। तो जो 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 द फ्लेवर है इंडिया का, एक सेक्युलर फ्लेवर जो है, उस फ्लेवर में आप जब देखते हैं तो जो इस्लामिक पोएट्स हैं, उन्होंने कभी अपना रूट्स को नहीं खोया है। इनके लेख में आप देखेंगे, वो कभी रूट्स को खोए नहीं है। ये देखिए, ये है वो संगम। पद्मा आप कैसे और काटेंगे? पद्मा और ब्रह्मपुत्र। कैसे आप काटेंगे बताइए? हाउ विल यू कट द नॉर्थ? इट्स नॉट पॉसिबल टू कट द नॉर्थ। इट्स नॉट पॉसिबल नहीं बोलूंगा मैं, इट्स नॉट इजी। इट्स नॉट अ 3 days जॉब, मिनिमम 3-4 months जॉब, एंड दैट टू यू हैव टू सेलेक्ट अ करेक्ट पीरियड। बारिश के मौसम नहीं हो पाएगा ये। मुझे तो इंदिरा एक गांधी बड़ा। को हम्म। इंदिरा गांधी को जनरल मानेकशॉ ने बोला था कि अभी नहीं हो पाएगा, बाढ़ जाने दीजिए, पानी थमने दीजिए, नहीं तो हम पूरा बॉक डाउन हो जाएंगे वहां। तब जाके दिसंबर में हुआ, नहीं तो हम जून में ही इनको दिखाने वाले थे। टोपोग्राफी और सीजन मैटर करता है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। और मैंने सुना है ऐसा कि टोपोग्राफी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन ऑल मिलिट्री प्लानिंग, राइट? Absolutely. So who doesn't hasn't given it a thought, or has given it a thought, but for clickbait, if you say things which is not militarily sound, then what happens is your credibility comes into question. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, क्योंकि मिलिट्री तो व्हीकल्स आर डिजाइन टू वर्क ऑन टोपोग्राफी, नॉट ऑन हाईवेज, तो उनके लिए टोपोग्राफी इंपॉर्टेंट है। जो भी आप बोले, मिलिटरी, आप मिलिट्री मैन हैं और मिलिट्री की बात करते हैं, तो जो भी आप बोले वो मिलिटरली साउंड होना चाहिए। करेक्ट। कॉमन सेंस भी होता है ना, अगर हम लोग जैसे कॉमन सेंस पे सोच रहे हैं। बात कॉमन सेंस की नहीं है आदि, बात वो है, देखिए, मिलिट्री एक ऐसा प्रोफेशन है जहां हमें 2 और 2 4 बोलने को सिखाया है। अगर एक अगर दुश्मन आप पे हावी हुआ, आपको वो सिचुएशन को समझ के विड्रॉ करने को भी सिखाया है, और कंट्रोल्ड एंड टैक्टिकल विड्रॉल कैसे करते हैं उसको भी हमें सिखाया जाता है। मिलिट्री माइंड हमेशा ये नहीं सोचता है कि हम जीतेंगे। हो सकता है किसी किसी बैटल या छोटे बैटल में हम हार रहे हों, उस समय क्या करेंगे? उस समय विवेक का इस्तेमाल करेंगे
कंट्रोल्ड विथड्रॉल करेंगे और लोगों को जमाएंगे और काउंटर अटैक करेंगे। तो ये जो अटैक, विड्रॉल, काउंटर अटैक, ये सारी चीजें हमारे टैक्टिकल फिंगर टिप्स में। तो दुनिया, देश, दर्शक हमेशा यही सोचते हैं कि जो मिलिट्री मैन बोलेगा वो सही बोलेगा, 100%, टैक्टिकली साउंड चीजें बोलेगा 100%, और सही चीजें लोगों को समझाएगा। उनकी अपेक्षा ये रहती है, उस अपेक्षा में आपको खरा उतरना ही पड़ेगा। 100%। मतलब हम लोग ठीक है। कॉर्पोरेट प्लानिंग में भी कितना मिलिट्री का केस स्टडीज यूज करते हैं बिकॉज ऑफ दैट रीजन, क्योंकि वो कॉर्पोरेट प्लानिंग में मिलिट्री के स्टडीज जो है इट बिकम से कि क्या माइन्यूटियस डिटेल में प्लानिंग होता है फॉर एवरी मूवमेंट, क्योंकि भारतीय सेना इज नॉट पाकिस्तानी सेना और बांग्लादेशी सेना, वी आर गोइंग टू यूज आवर इंटेलिजेंस अ लॉट। अच्छा, टेक्निकल ऑपरेशंस में आपने मुझे पिछली बार बताया था कि इंडियन फोर्सेस आर फार बेटर देन एनीवन एल्स इन द वर्ल्ड कंपैरेबल, क्योंकि हमारा उसमें कोई संदेह नहीं है। मैं रीजन बताता हूं क्यों। मैं हमें कल भी किसी चैनल पे बता रहा था, फ्रॉम समिट टू द सी हमको हर जगह लड़ना है। दुनिया का हाईएस्ट बैटलफील्ड इंडिया में है और दुनिया का बिगेस्ट नेवल बैटल एरिया इंडियन ओशन रीजन है। नॉर्थ साउथ चाइना सी, चार साउथ चाइना सी इंडिया और अंडमान के बीच में समा जाएगा। भूगोल देखिए उठा करके, साउथ चाइना सी का साइज देखिए और उसको चार साउथ चाइना सी आप भारत और अंडमान के बीच में बैठ जाएगा। करेक्ट, ये छोटा सा है। लुक एट इंडियन ओशन रीजन Yes, it's all there, right? Look at this. and look at the dagger which is going into Indian Ocean region. Ah, The dagger is the peninsular India. correct. इतना हावी किसी भी ओशन पे कोई भी देश नहीं है सिवाय भारत के, जिस वजह से एक ही ओशन है पूरे भूगोल में जिसका नाम किसी देश के नाम से। इट इज ओशन एंड इट इज इंडियन। From your voice, I can make out the Bharat Prem. Like, क्या, like, what is the love for our soldiers for this place? इंडियन ओशन को, ये दो शब्द है ना, इसको आप अदला बदली करिए। Ocean India. ओशन ऑफ इंडिया। Of India. Ocean of India. Better word है। आप यहाँ आके हमारे साथ आंख मिचोली नहीं कर सकते। सो हमारी फौज, हमारी नेवी, हमारा आर्मी, हमारा एयरफोर्स दुनिया के सबसे ऊंचे बैटलफील्ड, दुनिया के सबसे बड़ा सी, दुनिया में सबसे गर्म स्थल मरुस्थल थार डेजर्ट, दुनिया के वेटेस्ट प्लेस चेरापूंजी, हर जगह, या अरुणाचल प्रदेश, हर जगह काम करने की क्षमता, ट्रेनिंग की क्षमता है। हमारे सोल्जर्स एक्सपोज्ड हैं। आज आप पोस्टेड होंगे त्रिपुरा में, कल हो जाएंगे आप पोस्टेड बाड़मेर में, और दर्शकों को चले ये भी जाएंगे दिखना आप चाहिए ले। कि इंदिरा पॉइंट से इंडोनेशिया सिर्फ 175 किलोमीटर है। बिल्कुल, मैं गया हूं। I'll show you, I'll send you the picture. बांदा अच्छे देखिए कितना वो है। बांदा अच्छे इज राइट हियर। जब मैं MH370 की स्टोरी फॉलो कर रहा था तो यहीं से सारा वो पिंग्स हो रहा था सारा, एंड द इंडियन एयरफोर्स ट्रैक्ड इट आल्सो दैट टाइम। उसमें मैं आपसे अलग से बात करूंगा बिकॉज यू आर एन एविएटर, क्योंकि बहुत सारी थ्योरीज MH370 की आई हैं, उसमें अलग शो करूंगा दर्शकों के लिए। करेंगे। अच्छा, आज के एपिसोड में मुझे बताइए कि ये जो अगर चाइना किसी, अब म्यांमार की सेना है तो भारत के साथ है, कचिन रेबल्स वे सब यहाँ पे सिचुएटेड है चिटागोंग के पास में, बट चाइना का गेम प्लान क्या हो सकता है टू असिस्ट अगर मिस एडवेंचर कोई करता है तो व्हाट कैन दे डू? देखिए, चाइना इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा क्योंकि आप कुनमिंग देखेंगे, आप जाइए भारत के
नहीं उधर नहीं, मैं दिखाता हूँ कहाँ है कुनमिंग। Okay. Just keep going. This area of China, where which उताओ, उताओ के दाएं तरफ, उताव के दाएं उताओ, तरफ। Yes. हाँ, it is, ये पहाड़ है, इसके दाएं तरफ इज ऑल कुनमिंग। हम्म। ये जो लियांग दिख रहा है ना, ये, हाँ, हाँ। उस पे आप कर्सर लगाइए, आपको बताएगा वो कुनमिंग है। ये कुनमिंग रीजन है, लिजियांग। यूनान प्रोविंस में। हम्म। ओके, सो आप देखिए इस पूरे इलाके को, कितना पहाड़ी इलाका है। कोई फौज, कोई टैंक, कोई एयरफोर्स आ नहीं सकता है। उनका क्लोजेस्ट बेस इज डाली। हम्म। ये देखो ये डाली कुनमिंग लेफ्ट है में। इधर। हाँ, पूरा कुनमिंग रीजन है। डाल लेफ्ट। करेक्ट। यस, करेक्ट। डाली इज द क्लोजेस्ट बेस, वेरी स्मॉल एयर बेस दे हैव। डाली को निस्तनाबूद करने में हमें 4 वेव लगेगा, 4 waves of attack, which is 1 day. ना No, आपकी I'm बात सुन के seriously. मुझे इतनी खुशी होती है ना, लाइक आई एम जस्ट लाफिंग एंजॉयिंग। आप जूम इन करेंगे तो मैं दिखाऊंगा डाली को। जूम इन करेक्ट। कीजिए डाली पे। यस। डाली को सेंटर में लाइए, जूम इन कीजिए। और हाँ, वो देखिए डाली का रनवे साउथ पे है, वो डाली टाउन पे नहीं, थोड़ा और नीचे। डाली इज एन एक्सटेंडेड टाउन। जूम आउट कीजिए, मैं बताता हूँ। कुछ शेयर स्क्रीन है, उधर शो में, नीचे नीचे नीचे। वो देख दाएं तरफ, रिवर के राइट साइड में, वो लेक कहने, और ऊपर ऊपर ऊपर, हाँ ये देखिए यार, और ऊपर एक ग्रीन का ये, और जूम इन कीजिए। GH4, हाँ ये है ये। GH4। जूम इन कीजिए, मैं बताता हूँ। ये रहा। ये देखिए, हाँ यस। ये, दिस इज द ओनली बेस दे हैव। ये पहाड़ काट कूट के इन्होंने दाएं तरफ ये सारी चीजें बनाई हैं। और जूम इन करेंगे तो आपको फाइटर्स भी दिखेंगे। उन्होंने दिख रहे हैं। इट्स अ सिविलियन बेस, बट दे हैव मिलिट्री आल्सो। ये दाएं पैसेंजर्स तरफ, दिख रहे हैं। फ्लाइट भी आते हैं, यस। और बहुत सारे वो भी हैं। पैसेंजर फ्लाइट के पीछे की तरफ, नीचे नीचे नीचे, ये, हाँ ये राइट साइड में, हाँ ये ये सो दिस इज वेयर दे हैव देयर अंडरग्राउंड बेस। पार्किंग ऊपर है, नीचे बेस है। एनीवे, भी टॉप। तो लोगों को समझ में नहीं आता है कि लाइक मिलिट्री प्लानर्स पूरा स्पेसिफिक प्लानिंग करते हैं, कोई इधर उधर का नहीं करते हैं। लाइक पीपल हैव टू नो दैट। अमेजिंग, अमेजिंग। अच्छा, इसमें एक मैं आपसे इस मैप को ज़ूम आउट करता हूँ। बड़ा एक 2 क्वेश्चन्स हैं जिस पे हम लोगों ने एक बार छोटा-सा डिस्कशन भी किया था कि हम लोग को नाउ दिस डिएगो गार्सिया बेस जो है, यू नो, ये चागोर आर्चिपेलागो है, एंड जो रावण का जो एक्चुअल लंका था वो यही था। मैंने इस पे प्रूव कर चुके हैं, इट इज़ लाइक दैट, जो एक्चुअल था। इसको तमिल में है, लेमुरिया कहते हैं मुझको। हाँ, लेमुरिया है। इन लोगों ने वो भी चुरा लिया। नाउ नाउ फ्रॉम यू आई एम नोइंग। अच्छा, लेमुरिया इसी का नाम था, इसी का लेमुरिया नाम था। ओके। लेमुरिया का एक थोड़ा सा पार्ट रह गया, कन्नगी के, इसमें फिर कभी शो करेंगे। हाँ। अब इसमें ऑयल टैंक दिखेंगे आपको, देखिए थोड़ा ऊपर जाइए। नहीं 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 नहीं, अरे इधर नहीं, जूम आउट 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 आउट। हाँ। मैं आपके इसको क्रिटिकलिटी ये देखिए, 2 टैंक इधर है, और थोड़ा ऊपर जाइए, हाँ। थोड़ा और ऊपर, हाँ, खींचिए इसको नीचे, हाँ देखिए ऊपर, बाएं तरफ, बाएं बाएं, नाउ जूम इन।
Okay. Don't keep moving. नहीं, Now वो to थोड़ा go डिले है, थोड़ा go डिले है upwards. from here to there. Yes. Go Yeah. upwards, go upward. Yes. Zoom. और these are two big tanks. और थोड़ा खींचिए दाएं तरफ, और खींचिए हाँ, दाएं तरफ, हाँ. और तो थोड़ा खींचिए, और थोड़ा खींचिए, Yes. और थोड़ा ऊपर आइए, मतलब डाउन डाउन कीजिए, और थोड़ा जूम आउट कीजिए चाहे, हाँ. और यही देखिए बाएं तरफ, गोल 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 दिख रहे हैं। Yeah. सो दिस इज देयर क्रिटिकल ऑयल फैसिलिटी। Hmm. सब ओवरग्राउंड है, इनका कोई अंडरग्राउंड फैसिलिटी नहीं है। नहीं है. सो देर आर अबाउट आई थिंक 14 ऑयल टैंक्स आर देयर। Correct. इसके ऊपर आप ये ईरान आके 14 मिसाइल गिरा देगा तो ये लोग ना वो उड़ पाएंगे ना निकल पाएंगे। Wow. सबसे क्रिटिकल इनका अगर कोई चीज है वो ये है, 12 या 13 ऑयल टैंक्स। They showed that 6 B2 bombers and 7 or 8 जो है इनके these are the 7 or 8 इनके tankers KC-135 were there. So उनका like will they have planned to attack Iran then or no? But इतना They पास are में इंडिया के attacking इतना Yemen. पास में They are attacking Yemen from here. अच्छा is 3,000 kilometers approximately. Yeah, but it's from the southernmost point of Maldives. देखिए आप, there's a हाँ, town. Just go there. अच्छा. No, not there. They are attacking Yemen from here. Yemen. आप देखिए southernmost point of Maldives is कुछ city है, Adu city. Adu city. From there, see how close it is. Some 500, 600 kilometers away. It will be I've been near also. Yemen to Adu city is 3,500 kilometers. Another 200 kilometers, we just push it down. Yeah. There they are. Yes. Total. अच्छा, don't you think कि मेरा एक क्वेश्चन था कि the such a military presence in British Indian ये जो डिएगो गार्सिया जो मैं इसको चागोस ही बुलाता हूँ, चागोस जो इनका नेटिव नाम है, isn't it a threat to Bharat also? कैसे? How? It is like saying, is one single soldier threat to 1,000 soldier? कोई भी वहां आएगा, it is Turkey shoot for us. Turkey shoot. Can you explain what is that? तो एक बंदा है, एक आइलैंड है, हम चारों तरफ से हम इतना बड़ा डैगर हैं, और हमारे एसयू एमकेआई ने प्रैक्टिस भी हम किया था। जोर से ब्रह्मोस डाल देंगे तो कहाँ चला जाएगा? 12 ब्रह्मोस, 12 ऑयल टैंक्स, उसके बाद वो घर जाने के लिए हमसे ऑयल मांग रहा होगा सीज फायर के बाद। तो ब्रह्मोस का एक्सटेंडेड मिसाइल रेंज भी एक टेस्ट हुआ है 400 पहले से ही उतना ही था, हमने 300 किलोमीटर सॉफ्टवेयर में रेस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ था। ये ऐसा नहीं कि इसमें कुछ नई चीज इजाद कर दी हमने, टू कीप इट विद इन एमटीसीआर। राइट, नाउ वी आर सिग्नेटरी सो वी कैन अनाउंस इट आल्सो। दैट्स ऑल थिंग। एमटीसीआर में 300 किलोमीटर वाज अ रॉकेट, not a missile. So you didn't come under the missile control regime. Within 300 kilometers, you were not within the missile control regime because with less than 300 kilometers, it was a rocket. So rocket is not part of the MTCR restrictions. एक अभी रिसेंट रिपोर्ट आया था, भारत का 3500 किलोमीटर रेंज का सबमरीन बेस्ड लॉन्च मिसाइल टेस्ट हुआ है। You heard that? हाँ? अच्छा, आपने I want to know कि उसका इम्पैक्ट इस रेंज में, इस रीजन में क्या हो सकता है? बिकॉज वी ऑल नो कि इम्पैक्ट विल बी वेरी सॉलिड, क्योंकि इंडिया का जब टेस्टिंग होता है, मैं बार-बार again I'm saying, see, that's not the point. Submarine based launch इसलिए होता है
submarine is your last resort. It is the final kill switch on anyone who tries to hit you. For example, if someone goes so much missile that India is raised to the ground, you will still have submarine lurking under the water to raise the guy who raised us. So that is the beauty of submarine. We are NFU, no first use. हम पहले किसी पे भी न्यूक्लियर मिसाइल नहीं मारेंगे, लेकिन अगर मारेंगे उनको पुश्तें याद रखेंगी आने वाले कई हजारों साल तक की। 1000 साल पहले हमारे पूर्वजों ने भारत में मिसाइल दागा था और आज हम उस क्षेत्र में रहने लायक नहीं रह गए। एक और इसमें इस एपिसोड में हमारे पास बहुत सारे शोज हम बना सकते हैं। सो नाउ विद दिस चेंज इन द भारत का पोस्चर, और आपने बिल्कुल सही बोला था लास्ट टाइम भी, कावेरी इज क्लोज, एएमसी इज द फोकस, MK2 is a focus. तो भारत will focus on more indigenous engines now. चाहे ट्रम्प पैसा भेजे या ना भेजे, बट हम लोग तो अपने खुद के मैंने आपको महीना भर पहले बता दिया था, एंड पीपल हैव लव्ड दैट शो आल्सो। एक अब इसी पे एक क्वेश्चन आता है, जैसे कि नाउ वी आर सीइंग दिस मैप, मैं दर्शकों को दिखाता हूँ वापस। सो वी आर इन दिस रीजन हियर, और ओशन ऑफ इंडिया इज अ बेटर टर्म एक्चुअली, और बे ऑफ बंगाल को कपिल सागर, ये सिंधु सागर। तो सिंधु सागर, कपिल सागर या गंगा सागर जो भी बोल सकते हैं। एंड नाउ कम्स द पैसिफिक। मैक्सिमम मिलिट्री बेसिस आर इन द पैसिफिक, अमेरिका के मैक्सिमम। यहाँ पे सारे आइलैंड्स आर पैसिफिक, ओन्ड बाय ब्रिटिश और अमेरिकन। फॉर समोआ, अमेरिकन समोआ इज राइट हियर। सलमन आइलैंड्स वो भी ब्रिटिश ओन्ड है। न्यू कैलेडोनिया इज फ्रेंच ओन्ड। तो पूरा पैसिफिक में ऐसा ही है कि इट इज लाइक टारगेटिंग जापान इन द वर्ल्ड वॉर 2 पीरियड, और अभी वो चाइना के ऊपर फोकस है। सो माय क्वेश्चन इज कि भारत के शिप्स तो यहाँ पे आते रहते हैं। फिलीपींस को वी हैव सोल्ड ब्रह्मोस बैटरीज, और वियतनाम को भी हमने ब्रह्मोस बैटरीज बेच दिया है। तो इधर से लाइक वी हैव कंप्लीटली स्ट्रेटेजिकली आउट मैन्यूवर्ड चाइना इन दिस एरिया। तो लेकिन China is not our threat up now. Gradually, I see that China will never be a threat, military threat in terms many ways. लेकिन फिर भी और शायद भारत का थ्रेट मिलिट्री थ्रेट तो है, इसमें मिलिट्री थ्रेट नहीं है ऐसा नहीं है, मिलिट्री थ्रेट है। लेकिन एस्केलेटरी लैडर में आप देखते हैं तो वो थोड़े नीचे के पायदान में है बस। So they are building all the 6th generation and largest navy and all these things. Everything is against US. बट वो तो इंडिया के अगेंस्ट भी यूज कर सकते हैं ना। अरे उनके आप उनके कोई भी न्यूज़पेपर या कोई भी यूनिवर्सिटी के जो टॉक्स हैं या फिर उनके जो रोजमर्रा के जो उनके डिस्कशंस हैं, किसी भी वेदर इट इज any part of China, India doesn't figure at all. We don't figure in their discourse. वो हमको, उनके आम पब्लिक हमको दुश्मन मानती ही नहीं। उनको ये मालूम है कि ये बुद्धिज्म इन्होंने हमें दिया था, कॉन्ग-फू हमें दिया था, बोधि धर्मन जो आए थे वो भारत से आए थे। वो आप किसी भी उनके स्कॉलर या बच्चों को भी पूछेंगे, उनको ये पता है कि मैथमेटिक्स इंडिया से आया उनके पास। सेल्फ प्रोटेक्शन उनका जो इंडिया से आया, मेडिटेशन इंडिया से आया। That is true, because मैं वहाँ पे बहुत बार गया हूँ and I feel very welcome there by them. But अनलाइक पाकिस्तानी का बच्चा जब पैदा होते ही उसके अंदर एंटी इंडिया इंजेक्शन घुसाते हैं ये लोग, इनॉकुलेशन से पहले वो एंटी इंडिया इंजेक्शन देते हैं, फिर उसके बाद इनॉकुलेशन देते हैं।
आज के डिस्कशन का लास्ट पॉइंट, आपने हम्म, बांग्लादेश कवर कर दिया और उसका ही बड़ा भाई पाकिस्तान। तो पाकिस्तान पे अभी जम के भारतीय सोल्जर्स ने उनकी पिटाई करी। तो करीब कर भी रहे हैं, अभी चल रहा है। प्रोग्राम इज ऑन। नो, और बलूचिस्तान पिटाई इज ऑन। तो उसके लिए एक स्टेटमेंट आया था बहुत इंदिरा गांधी ने एक बड़ा अच्छा जवाब दिया था निक्सन को। निक्सन को बोला था उन्होंने कि आपने वियतनाम देखा होगा, वी आर 10 टाइम्स दैट। ये जवाब दिया था। और निक्सन ने बोला हम 13 दिन में हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर पहुंचेगा। सैम मानेकशॉ ने बोला मैम आई डिलीवर यू बांग्लादेश इन 12.5 days। बड़ा इट वाज वेरी इंस्ट्रक्टिव प्रोफेटिक कन्वर्सेशन। आज पाकिस्तान की क्या स्थिति रहेगी? उस समय तो 12 दिन थे उसके पास। देखिए, हमारा फोकस बड़ा सिंपल है। दो फोकस है हमारा। एक, बलूचिस्तान को उसकी जो दे दुनिया में उसकी जो जगह है वो देना जरूरी है। सो बलूचिस्तान का स्वतंत्रता जो है वो हमारा ही नहीं, पूरी दुनिया का फोकस होना चाहिए, क्योंकि उसको इलीगली ऑक्यूपाई किया गया पोस्ट इंडिपेंडेंस। बलूचिस्तान एक अलग देश था, इलीगली ऑक्यूपाई किया गया। तो बलूचिस्तान का फ्रीडम हमारे लिए फोकस है। और पीओ के जो हमारे रेस्ट ऑफ द कश्मीर जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड है, वो हमारे कश्मीरी भाइयों के साथ मिल जाना चाहिए। जितनी खुशहाली इस तरफ है उतनी ही खुशहाली उस तरफ भी होना चाहिए। कि जो हमारे कश्मीरी भाई उस तरफ पाकिस्तान की तरफ इलीगली जो पाकिस्तान ने कैप्चर करके रखा है, उन्होंने क्या गुनाह किया है? पानी नहीं, बिजली नहीं, सड़क नहीं, तालीम नहीं, इतना गुर्बत, उन्होंने क्या पाप किया है? तो ये दो चीजें हमारे लिए फोकस है। फिर ये कराची के लोगों को ये बिल्कुल नीचे की नजर से देखते हैं। फिर आगे जाकर के सिंध और पंजाब को भी अपना अपना रास्ता अलग हो जाना चाहिए मेरे ख्याल। ये सिंध अधिकांश प्रो इंडिया है, क्योंकि 47 से पहले कराची और बॉम्बे के बीच स्टीमर चलता था दिन में 10। इतना ट्रेड था, एकदम बंद हो गया। उन्होंने क्या गुनाह किया? सिंधियों आपका घर सिंधु देश भारत में जल्दी मिलेगा। मिलेगा। तो सिंधियों से मेरा ये बहुत मेरी काम है, हमारे सबकी काम है। मेरे हमारे जीते जी देख लेंगे हम, होपफुली, और पीओके भगवान ने भी, चाहा। बलूचिस्तान, सिंधुस्तान। वो तो जल्दी हो जाएगा, इसी दशक के अंदर ही हो जाना चाहिए। आज आपने कितना डिटेल में समझाया है एंड सॉरी टू द व्यूअर्स कि मेरा कर्सर हमारा इंटरनेट का स्पीड अफेक्ट कर रहा है यूएस और इंडिया के बीच में। मेरा कर्सर वाज अपीयरिंग स्लो ओवर देयर, इसलिए हो रहा था क्योंकि आप जब तक बोल रहे थे तब तक मेरा कर्सर मूव कर चुका था। सो दैट्स व्हाई वी हैड दैट। सो नेक्स्ट टाइम हम लोग सोचेंगे कुछ और तरीके से दिखाएं आपको मैप यूजिंग एप्पल मैप्स। मैंने अभी एप्पल मैप्स ओपन किया था बट नेक्स्ट टाइम विल यूज दैट। It's more political map. Thank you so much. I think this show puts to rest all the fake news going on. You know, देखिए, otherwise, ढिंडोरा पीटना अच्छी बात है, लेकिन आप मिलिट्री माइंड हैं तो आप थोड़ा कम छोड़ा करेंगे डील। ज्यादा डील छोड़ते हैं तो फिर बात हजम होना मुश्किल हो जाता है। thank you, thank you. And बाय for the viewers, इनका प्लेलिस्ट है एमजे अगस्टिन विनोद जी का डॉक्टर एमजे अगस्टिन विनोद प्लेलिस्ट इज देयर एंड ही इज अ डेकोरेटेड वॉर हीरो ऑफ इंडिया। तो रेस्पेक्टफुली आप कमेंट्स भी लिखिएगा और respectfully you if you like to see his other videos on the channel you can see from there. So thank you for all the viewers for watching and thank you very much sir for coming on the show. Jai बाय। Hind, Namaste and जय Jai भारत। Jagannath. Jai Bharat.